So hello and welcome back to our channel, and today we are going to start with our schemes classes. Before this class, I made a video on schemes, how to proceed with schemes, and I told you there कि हम ministry wise schemes carry करने वाले हैं forward in our upcoming classes. So I thought कि हम Ministry of Agriculture की scheme से शुरू करते हैं. So actually मैं आपको थोड़ा सा time लेके format समझा देती हूँ classes का, so that it's easy for you to understand and frame your notes well, so that you will know what we are going to do. So first we will start with Ministry of Agriculture schemes. So it's not possible to tell you all the schemes in one class, so I am making this class in different parts. So I am trying ki there would be short parts so that it's easy to learn and understand, because when a video is very long video, so you feel very heavy to watch that video. So if video would be in past parts, it would be easy to understand and grasp things. सो वॉट वी विल डू इट्स, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ उठा रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से हम शुरू कर रहे हैं. इन दिस वी विल डू सम पार्ट्स वीडियो सच है. सबसे पहला पार्ट हम कर रहे हैं फार्मर्स वेलफेयर एंड इनकम सपोर्ट स्कीम्स. तो इसमें हमने 7 स्कीम्स कवर करी है, एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी 7 स्कीम्स. फॉर दैट मैटर आर सेकेंड पार्ट वुड बी बजट स्कीम्स. बजट में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोविजंस आए हैं वी विल कवर दैट पार्ट. लाइकवाइज हम थर्ड पार्ट में करेंगे सारी इंश्योरेंस सेक्टर स्कीम्स ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस सच एज फसल बीमा योजना एंड एक्सेट्रा. देन वी विल कवर इरीगेशन से रिलेटेड सारी स्कीम्स. देन वी विल कवर एक्सटेंशन रिलेटेड स्कीम्स एंड सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स, सॉइल रिलेटेड स्कीम्स. तो ऐसे कर हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की सारी स्कीम्स डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर लेंगे. दीज पार्ट्स विल बी रिलीज सून, लाइक इन टू मैक्सिमम 3 days वी विल कवर ऑल दी स्कीम्स, एंड लाइकवाइज वी विल स्टार्ट फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. बिकॉज कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं उनकी स्कीम्स ज़्यादा हैं, सो पार्ट्स ज़्यादा होंगे. बट कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा स्कीम्स वी डोंट हैव टू प्रिपेयर, सो वो जल्दी हो जाएगा प्रिपेयर. सो डोंट वरी, हम स्कीम्स को करेंगे. आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ देखिए. प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, इट वुड बी रियली हेल्पफुल. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, make your own notes. Just write Ministry of Agriculture schemes, and scheme wise, ministry wise, make your own notes. This is the most organized format. Then I can provide you कि आपको कोई भी confusion नहीं होगा in preparing any of the scheme. And just leave two lines if there is any update. अगर आपको कुछ भी नया मिलता है स्कीम के बारे में, just update it there. वैसे तो आपको all updated things we'll provide you here only, so you don't need to worry on that part. But I really request you to make your own notes. That would be really helpful for you for the revision part. Now let us start with our farmer welfare or income support related schemes of Ministry of Agriculture. In this we are going to study about PM Kisan, KCC scheme, then interest subvention scheme, agriculture infrastructure fund, Namo Drone Didi, AgriSure fund, and credit guarantee scheme for NWR pledge financing. तो ये 7 schemes we are going to cover in today's class. So our first scheme is PM Kisan scheme. So PM Kisan scheme में अगर हम कोई भी स्कीम पढ़ रहे हैं, so based on previous year questions pattern, what we will study if the date is important of launch, अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज़, क्योंकि हम मिनिस्ट्री वाइज कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. देन क्या कवर है, क्या एक्सक्लूशन है, क्या फीचर्स है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. So PM Kisan scheme is a important scheme, a flagship scheme. It is very important. You need to know about PM Kisan scheme. So सबसे पहले PM Kisan scheme कब लॉन्च हुई थी? So PM Kisan scheme was launched in February 2019 and it is a central sector scheme. Central sector scheme का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी स्कीम है तो वो या तो सेंट्रल सेक्टर हो सकती है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो सकती है. सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट देगी. इट कैन बी 50:50, इट कैन बी 60:40, इट कैन बी 90:10, वो डिपेंड करता है. एंड सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर इज़ गिविंग फॉर दैट स्कीम. तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स जो होती हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, बिकॉज फुल फंड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम. लाइकवाइज पीएम किसान स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब फुल बजटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. Now, it was launched in February 2019. You have to remember this date that it was launched in February 2019 and it is a centrally sector scheme. It was launched from Gorakhpur, UP.
Now it is under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and it is effective from the date that is 1st of December 2018. मतलब it was launched in February 2019 but उसको effective बनाया गया है from 1st of December 2018. आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि उसकी कट ऑफ डेट है 1st February 2019. तो आपको याद रखना है effective from 1st December 2018, cut off date from 1st February 2019 and it was launched on 24th of February 2019. राइट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीएम किसान है क्या. हम अभी इनकम रिलेटेड सपोर्ट स्कीम्स पढ़ रहे हैं. सो व्हाट पीएम किसान इज डूइंग, पीएम किसान कुछ अमाउंट फॉर एग्जांपल 6,000 एंड इट इज 6,000 रुपीज़ इट इज़ गिविंग डायरेक्टली टू फार्मर्स. सो दिस इज़ पीएम किसान स्कीम. नाउ ये किसको पैसे दे रहा है, दैट वी नीड टू नो कि क्या कवरेज है स्कीम का, किन लोगों को पैसे जा रहे हैं और कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं. सो कवरेज की बात करें, सो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज इन इंडिया आर covered under this subject to certain exclusions. So what does it means is कि सारे लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ का मतलब है कि जो भी लैंड होल्ड कर रहे हैं, यानी कि क्या इसमें जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो लीसीज है या फिर जो शेयर क्रॉपर्स है, जो एग्री लेबरर्स है जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, अगर वो लैंड होल्ड नहीं करते तो क्या वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्या उन्हें पीएम किसान का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो द राइट आंसर इज़ येस, उन्हें नहीं मिलेगा बिकॉज पीएम किसान में सिर्फ हम लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को कवर कर रहे हैं. स्कीम्स बेनिफिट ओनली गोज टू दोज हुज नेम इज़ इन द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट और यूटी एज अ कल्टिवेटर और अ ओनर. सो दिस यू नीड टू नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सिर्फ सारे लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ कवर्ड है. अगर किसी का नाम है लैंड रिकॉर्ड्स में तभी उसको हम बेनिफिट देंगे. बट देर इज़ सर्टेन एक्सेप्शन इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड झारखंड. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और झारखंड में कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे. सो क्या किया जाए, इफ़ देर आर नो लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल, सो हाउ यू विल डिसाइड कि पीएम किसान का बेनिफिट किसे मिलना चाहिए. बिकॉज इन पीएम किसान देर इज़ अ फीचर कि सिर्फ लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को ही पीएम किसान का बेनिफिट मिलेगा. सो इट वॉज सेट कि एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड झारखंड स्टेट्स, जो ये क्राइटेरिया है वो हर स्टेट में लगेगा. सो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ आर एप्लीकेबल. Now what is the financial benefit? So 6,000 rupees per year is given for a farmer family and it is paid in 3 equal installments of 2,000 rupees each. 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 के ईच, पेड एवरी 4 months आफ्टर वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. यानी हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं. टोटल 6,000 रुपीज़ वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. Now cut off date is 1st February. What do you mean by cut off date 1st February? cut off date यानी कि जब से हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हम किसको स्कीम का बेनिफिट देंगे, कब से स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ फार्मर फैमिली, वी आर सेइंग कि फार्मर फैमिली में आता है हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन. सो माइनर चिल्ड्रन की जो डेट है कि फ्रॉम व्हेन दे आर माइनर चिल्ड्रन, वो कट ऑफ डेट भी होगी 1st February 2019. सो द कट ऑफ डेट इज़ 1st February 2019. Now must own cultivable land as per state or union or territory land record that we have understood. What else? Who all are not eligible for this scheme? अगर कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे. अगर कोई फार्मर फैमिलीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, मींस दे आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं या PSUs में है, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में है, तो ऑब्वियसली इस स्कीम का बेनिफिट हम उन्हें नहीं देंगे. इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा. प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, CA रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल bodies are also excluded. Then retired pensioners with pensions more than or equals to 10,000 rupees per month except MTS और class 4 group D. यानी कि अगर किसी की पेंशन रुपीज़ 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो दे आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम. तो आपको एक्सक्लूजन्स भी याद रखने, बिकॉज अगर MCQ में आ गया कि पेंशन विथ मोर देन 5,000 आर एक्सक्लूडेड, तो इट वुड बी रॉन्ग क्योंकि पेंशन विथ मोर देन 10,000 रुपीज़ पर मंथ आर एक्सक्लूडेड. राइट. नाउ दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, दैट इज़ PM किसान सम्मान निधि योजना का 20th इंस्टॉलमेंट दिया गया है ऑन 2nd of August 2025 फ्रॉम वाराणसी. क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे रिलीज़ किए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज़ ईच एवरी 4 months. सो दिस वॉज द 20th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान रिलीज्ड ऑन 2nd of August 2025 फ्रॉम वाराणसी. ऑफ हाउ मच रुपीज़? ऑफ 20,500
500 crore rupees to 9.7 crore farmers. Here it is given, this is taken from PIB news article that says world's largest DBT scheme for farmers, a digital marvel, 20,500 crore rupees set to be released to 9.7 farmers under the 20th installment. और ये 20th installment released हुई है from Varanasi. Now, also one important current affairs fact, that is AI chatbot with the name Kisan E-Mitra. So in 2023, AI chatbot with the name Kisan E-Mitra was integrated with PM Kisan grievance system. यानी अगर किसी को grievance है, यानी कि किसी को शिकायत देनी है या हेल्प चाहिए, so एक AI chatbot रिलीज़ किया गया है with the name Kisan E-Mitra. That is integrated with PM E-Kisan. So Kisan E-Mitra, you have to remember Kisan E-Mitra. राइट वो आपको मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देगा वाया भाषिनी, रिजॉल्व्स क्वेरीज ऑन पेमेंट्स एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट AI चैटबॉट इन एनी फ्लैगशिप स्कीम. सो PM किसान E-Mitra फॉर PM किसान स्कीम. नाउ दिस इज़ एन MCQ ऑन PM किसान स्कीम विच आई वुड लाइक यू टू सॉल्व. इसका आंसर है ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में, बट आई वुड रियली वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो, जस्ट रीड MCQ by yourself and just give it a try. Are you being able to solve this MCQ? So let us read now what does the MCQ say. Consider the following statements about PM Kisan scheme. First statement says it is a central sector scheme fully funded by Government of India. Second, the scheme initially covered only small and marginal farmers up to 2 hectares of land. Currently, it provides income support to all land-holding farmers subject to certain exclusions. Landless tenants farmers are also eligible if they are registered under eKYC process. So, आप खुद प्लीज़ अटैम्प्ट कीजिए. ये सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं. बेरिंग स्टेटमेंट नंबर 2. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि पहले स्कीम ओनली कवर्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होता था, बट नाउ स्कीम इज कवरिंग all land holding farmers. So this statement is correct, but you have to solve this MCQ by yourself. So I hope आपने पढ़ा, आपने सॉल्व किया and आपके पास एक आंसर है. Now let's see the answer. So the right answer is B, that is 1, 2 and 3. Landless tenants farmers are not eligible. This we have read because ownership of land is mandatory under PM Kisan Yojana. So now let's move on to our second scheme, that is Kisan Credit Card Scheme. So Kisan Credit Card Scheme was launched on August 1988. So it's a old scheme. आपको याद रखना है कि कब लॉन्च हुए, बिकॉज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इनिशियली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड इसका भी बजट में भी मेंशन था. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. ऑल्सो हमने इसे PIB में कितनी बार कवर किया है, व्हेन एंड व्हेन इट हैज़ अपेयर्ड. सो वी विल रीड नाउ हेयर इन कंप्लीट डिटेल द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. So Kisan Credit Card Scheme was launched in August 1998 by NABARD and RBI based on RV Gupta Committee recommendations. So आपको कमेटी का नाम याद रखना है कि RV Gupta Committee recommendations के बेसिस पर NABARD and RBI ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया अगस्त 1998 में. नाउ Nodal Ministry is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Implementation agencies is Commercial Bank, Regional Rural Banks, Cooperative Banks. Objective क्या है? Objective is providing timely and adequate short-term credit support to farmers for cultivation and allied activities as simplified, hassle-free and single-window platform. Now let us see objectives that we have already discussed. शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन की नीड को पूरा करना. अगर किसी फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग नीड्स है तो उसको क्रेडिट मिलेगा. हाउस होल्ड कंजम्पशन नीड्स के लिए क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल फॉर फार्म एसेट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर अलाइड एक्टिविटीज़. नाउ इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? हु ऑल आर एलिजिबल? सारे फार्मर्स एलिजिबल हैं, इंडिविजुअल या जॉइंट कलेक्टर्स. अगर टेनेंट फार्मर्स हैं, ओरल लीसीज हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं फॉर किसान क्रेडिट कार्ड. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स इंक्लूडिंग टेनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स, ये सब भी एलिजिबल हैं फॉर किसान क्रेडिट कार्ड. नाउ स्कीम वॉज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स. That is allied and non-farm activities were also included in the year 2004. So allied and non-farming activities को भी किसान क्रेडिट कार्ड में इंक्लूड कर लिया गया था in the year 2004. Now this is an important part, interest subvention, that we are going to also read in a separate scheme, that is interest subvention scheme, and now later called as modified interest subvention scheme. So interest subvention का मतलब क्या होता है? Let's understand that. Interest subvention का सिंपल मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर 9% का इंटरेस्ट रेट है दैट बैंक इज़ प्रोवाइडिंग टू अ फार्मर, कि इतने इंटरेस्ट रेट पर आप लोन ले सकते हैं. तो अब सबवेंशन मिलेगा, यानी कि
गवर्नमेंट जो है बैंक को अगर पैसे दे रही है कि आपको हम 2% पैसे देते हैं लोन का, आप फार्मर से मत लीजिए, सो दैट इज़ सबवेंशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कि वो सपोर्ट मिल रहा है फार्मर्स को, फिर वो सब्सिडाइज रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर दे कैन टेक द लोन. सो इट इज़ सिंपल एज दैट कि सबवेंशन मिलता है. नाउ ये सबवेंशन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मिलेगा. सो क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख रुपीज़ आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन, दैट इज़ गवर्नमेंट सब्सिडी. अभी बजट 2025 में, द रीसेंट बजट, इट वॉज सेट कि हम इस सबवेंशन को 3 लाख से 5 लाख रुपीज़ कर देते हैं, बट इट हैज़ स्टिल नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. सो स्टिल वी विल कंसिडर कि क्रॉप लोन्स अप टू 3 lakhs आर ओनली एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन, बट इन बजट इट वॉज सेट कि हमें इसे 3 लाख से 5 लाख रुपीज़ कर देना चाहिए, बट स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड. सो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो. Now, crop loans are eligible up to 3 lakh rupees. Basic subvention पहले 2% था, but after 2022 it has become now 1.5%. But farmers को कोई भी लॉस नहीं होगा अगर आप समझें और सोचें कि अब तो इंटरेस्ट सबवेंशन कम कर दिया है. फर्स्ट इट वॉज 2%, नाउ इट इज़ 1.5%. तो नो, द एक्स्ट्रा जो 0.5% है, द बैंक्स हैव टू सफ़र. So farmers will get crop loans at subsidized rate. For example, if a bank lends at 9%, government will give a 1.5% support. So farmers will pay rest 7% only, because जो extra 0.5% है वो banks will pay. So farmers को उतना ही पे करना है. Now there is another term that is prompt repayment incentive. Basic subvention हमने समझ लिया. Now what is PRI? That is prompt रीपेमेंट इंसेंटिव. प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव का मतलब होता है, अगर जो लोन फार्मर ने लिया है वो अगर फार्मर टाइमली रीपे कर देते हैं, इफ़ फार्मर रीपेज ऑन टाइम, देन दे विल गेट अनदर 3% रिबेट. सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% माइनस 3% इज इक्वल्स टू 4% पर एनम रह जाता है. सो दैट इज़ PRI, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव. सो इसका भी प्रोविजन है. देन कोलैटरल फ्री लिमिट का मतलब होता है बिना किसी कोलैटरल के कितना अमाउंट का लोन ले सकते हैं. कोलैटरल इज द सिक्योरिटीज प्लेज्ड बाय फार्मर्स टू बैंक्स. सो विदाउट एनी कोलैटरल how much loan can be taken? So firstly it was 1.6 lakh rupees, but now recently on January 1st 2025 it has been increased to 2 lakh rupees collateral free loans. So collateral free loan is up to 2 lakh rupees and द इंटरेस्ट सबवेंशन लोन इज़ अप टू 3 लाख रुपीज़, जिसको बढ़ाने की बात की है टू 5 लाख रुपीज़. सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन एट दिस पार्ट. नाउ वैलिडिटी एंड रिन्यूएबल. जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इट इज़ वैलिड फॉर 5 years विद ईयरली रिव्यू एंड लिमिट मे बी कंटिन्यूड और enhanced or cancelled based on performance. Now the age limit for getting a Kisan credit card is 18 to 75 years, and for senior citizen more than 60 years legal hire is mandatory. So this part also you have to remember. Now here it is written कि लिमिट में भी कंटिन्यूड, इन्हेंस्ड और कैंसिल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. यानी किस लिमिट की बात कर रहे हैं? इज़ देयर एनी लिमिट ऑन किसान क्रेडिट कार्ड लाइक आर ATM कार्ड इज़ देयर, लाइक आर डेबिट कार्ड इज़ देयर? तो एक लिमिट होती है. सो व्हाट इज़ द लिमिट ऑन आर किसान क्रेडिट कार्ड? तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल फार्मर, दैट इज़ नॉर्मल KCC होल्डर्स. बैंक विल डिसाइड कि कितना लोन फार्मर को मिलेगा फॉर अ क्रॉप कल्टिवेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी. इसका मतलब ये है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. थोड़ा सा टेक्निकल है बट इट्स वेरी ईजी अगर आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे. नाउ आई शुड टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, ध्यान से प्लीज़ जस्ट लिसन इट, कि एक कमेटी है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी. अब ये जो कमेटी है वो बताएगी कि कितना लोन जो है वो फार्मर को ज़रूरी है क्रॉप कल्टिवेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कमेटी ने बोला कि 50,000 रुपीज़ इज़ नीडेड पर एकड़ ऑफ पैडी, तो ये वो जो चीज़ है कि इतना रुपए ज़रूरी है फॉर दिस क्रॉप. ये जो कमेटी है इसने बैंक को बताया कि बैंक को एक कल्टीवेशन के लिए फॉर दिस क्रॉप कल्टीवेशन इतनी लोन की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ व्हाट बैंक विल डू? बैंक विल ऐड एक्स्ट्रा 10% फॉर हाउस होल्ड और पोस्ट हार्वेस्ट नीड एंड एक्स्ट्रा 20% फॉर मेंटेनेंस और रिपेयर्स ऑफ फार्म एसेट. तो ये अब मिलाकर एक लिमिट बन गई कि दिस इज़ लिमिट फॉर दैट एकड़. नाउ सी 50,000 अगर उसने बोला, कमेटी ने बोला कि दिस 50,000 इज़ नीडेड पर एकड़ ऑफ पैडी. नाउ एक्स्ट्रा 10% इज एडेड फॉर हाउस होल्ड या पोस्ट हार्वेस्ट नीड. तो 50% का 10% बिकम्स 10,000, राइट. तो अब ये 10,000 ये ऐड हो गया 5,000,
और अब एक्स्ट्रा 20% ऐड होगा फॉर मेंटेनेंस और रिपेयर्स. सो 50,000 का 20% इज 10,000 रुपीज़. सो एक्स्ट्रा 10,000 इज एडेड कि रिपेयर्स के खर्चे के लिए एक्स्ट्रा 20% चाहिए. देन adding 50,000 and 15,000 of this extra added, it becomes 65,000. So KCC limit becomes 65,000. So you have to remember from this कि extra 10% is added for household needs and extra 20% is added for maintenance and repairs, and this is told to banks by district level technical committee. अब ये क्योंकि हर साल कांस्टेंट नहीं रह सकता, ईयर ऑन ईयर एक्सक्लेशन हैपन बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हैपनिंग, मैनी थिंग्स आर हैपनिंग. सो 10% every year is added for 5 years to maintain inflation and to account for inflation and rising cost. Banks increase the loan amount by 10% every year so that farmer doesn't need to reapply each year. For example, अगर year 1 का 10,000 है तो अब दूसरी साल वही अमाउंट हो जाएगा 1,10,000, then 1,21,000. हर साल extra 10% is added on account of inflation, and the card is valid for 5 years and with annual review. So I hope now everything is clear with related to this Kisan Credit Card. Now one more important thing is left, that is marginal farmers के flexi KCC limit होती है. So this KCC limit ranges from 10,000 to 50,000. This is also an important fact that you have to remember. This covers both crop and allied needs like goat rearing, poultry, etc. It is meant for farmers with very small operational land holdings. So उनकी KCC limit बना दी गई है. जो marginal farmers होते हैं जो कि काफ़ी small land holding को own करते हैं, उनकी KCC limit है 10,000 rupees to 50,000 rupees. Also insurance cover is given for KCC card, that is 50,000 rupees in case of death या permanent disability and 25,000 rupees for partial disability. So these all are features and important thing that you have to remember with respect to Kisan Credit Card. Now please, I would really request you all to solve this particular MCQ and then write in the comment section also, or you can just solve it by yourself and then just see the answer later. So the question is, the scheme was launched in 1988-99 jointly by RBI, NABARD and Ministry of Agriculture. Second statement is collateral free loan limits are available up to 3 lakh rupees. Third is interest subvention scheme provides 2% subsidy and additional 3% rebate for prompt repayment. Please do it to 1.5% only. Then KCC has been extended to animal husbandry and fisheries farmers. So please solve this MCQ and let me know, were you able to solve this MCQ? Now let us see the answer. The correct answer is B, because second statement is wrong. Collateral free loans are not available up to 3 lakh rupees. It is available up to 2 lakh rupees, which has been recently increased from 1.6 lakh rupees. So B is the right answer, and just make it 1.5%. Now our next scheme is interest subvention scheme for short term credit. इसी interest subvention scheme के बारे में हम बात कर रहे थे when we were talking in Kisan Credit Card कि कितना interest subvention मिलता है 1.5%. और ये वही scheme है now which is called as modified interest subvention scheme. You must have read either in the current affairs or any other classes. The modified interest subvention scheme. Now the interest subvention scheme was launched in 2006 to 2007, which has been now continued till now, but it has now been renamed at modified interest subvention scheme. 2019 में scheme को expand कर दिया गया था to include cooperative banks refinancing through NABARD also. Now the nodal ministry is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and implementing agencies are RBI and NABARD. So RBI implements for commercial banks, regional rural banks, small finance banks, and NABARD for cooperative banks. But now in modified interest subvention scheme this has been changed, so don't please write this. I'll tell you the updated part, please write that part. Now what is the loan coverage? This we have already read कि जो crops का loan coverage है that is 3 lakhs per farmer, tenure up to 1 year, repayable within crop season cycle. It applies to KCC loans, cooperative banks, regional rural banks and commercial banks too. Now what is the interest subvention benefit? So that is 1.5%, and अगर prompt repayment कर दिया है तो additional 3% भी मिलता है. उसके बाद अब क्या डिफरेंस है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वी हैव रेड KCC ऑल्सो, ISS ऑल्सो, एंड KCC हमने पढ़ा कि ISS इज़ अ पार्ट. सो व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन
किसान क्रेडिट कार्ड एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक बार वो समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि देयर इज़ अ पर्सन विद द नेम राजू एंड ही हैव टेकन अ क्रॉप लोन ऑफ ₹1,00,000. अगर उसके पास KCC भी नहीं है, ISS भी नहीं है, तो ही विल गो टू अ बैंक और उसको नॉर्मल लोन मिलेगा 9% इंटरेस्ट रेट पर एंड ही विल पे 9,000 पर ईयर. अगर उसके पास KCC कार्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, उसको जो लोन है वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगा. ईजी विड्रॉल कैन बी डन बट इंटरेस्ट विल स्टिल रिमेन एट 9%. बट इंटरेस्ट सबवेंशन अगर उसमें मिलेगा तो इसका मतलब है अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एंड राजू हैव टू पे ओनली 7%, दैट इज 7,000. एंड ऑल्सो इफ़ ही टाइमली रीपेस तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगा सिर्फ 4%, तो उसको सिर्फ 4,000 देना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन KCC एंड ISS. लोन इज डिलीवर्ड वाया KCC एंड लोन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड वाया ISS. सो आई होप नाउ द डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर टू यू. Now this scheme has been renamed as Modified Interest Subvention Scheme. Now what are the main changes कि हमने किया, ऐसा क्या हुआ कि हमें इसे रीनेम करना पड़ा, हमें इसे चेंज करना पड़ा, कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ होगा. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज Modified Interest Subvention Scheme. So now NABARD has been designated as main implementing agency for cooperative banks, for regional rural banks and also coordinating with state commercial banks. So that is why I told you कि जब आप ये स्लाइड में जब ये था, क्योंकि पहले ऐसा होता था एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है. पर पहले क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अलग थी, बट वी हैव टू रीड एंड लर्न द लेटेस्ट वन. सो अभी क्या हो गया है, NABARD हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. Now what else modifications have been done? Claims have been streamlined, faster reimbursement of subvention to banks और allied activities जैसे कि animal husbandry, fisheries, dairies को हम coverage में ले आए हैं. We have also strengthened monitoring and auditing of claims. So these things have taken place and that is why we have now renamed our scheme to Modified Interest Subvention Scheme. Now the short एक्चुअली आपको ये याद रखना है फैक्ट कि हमने क्रॉप की लोन लिमिट हम जब से पढ़ रहे थे इट इज़ 3 लाख रुपीज़ of subvention which we are trying to expand it to 5 lakh rupees. But for animal husbandry and fisheries the loan limit is available up to 2 lakh rupees. The tenure is 1 year for short term crop loans. KCC card is valid for 5 years. बट यहाँ पर हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं जिसका टेन्योर है 1 ईयर का. गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो लॉन्च किसान ऋण पोर्टल. किसान ऋण पोर्टल आपको याद रखना है, यहाँ अभी हमने PM किसान में भी एक पोर्टल पढ़ा था, किसान ई-मित्रा हमने पोर्टल चैटबॉट पढ़ा था. हेयर वी आर रीडिंग अबाउट किसान ऋण पोर्टल. तो किसान ऋण पोर्टल गवर्नमेंट लेकर आई है टू ट्रैक इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स डिजिटली. सो किसान ऋण पोर्टल यू हैव टू लर्न. नाउ इंटरेस्ट बेनिफिट्स दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है. और जो चीज़ डिफरेंट है जो याद रखनी है दैट इज़ कैलेमिटी सपोर्ट. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न. 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन, 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव. एंड अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, इफ़ शॉर्ट टर्म लोन्स देन शॉर्ट टर्म लोन्स कैन बी रीस्ट्रक्चर्ड इनटू टर्म लोन्स. और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी की सिचुएशन आ जाती है देन एन एडिशनल 2% इंटरेस्ट सबवेंशन इज गिवन टू बैंक सो दैट फार्मर्स आर नॉट overburdened. So you have to remember this fact. It is really very important that in case of natural calamity an additional 2% interest subvention is given to banks so that farmers are not overburdened. Right, now let's move on to our fourth scheme, that is Agri Infrastructure Fund. I think we should just do it little more fast because like that we won't be able to complete it in a short time. So I'll just now move little quickly. The Agri Infrastructure Fund. So Agri Infrastructure Fund was launched in 2020 and the nodal ministry is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and it is again a central sector scheme. मतलब all budgetary contribution will come from center. अब ये फंड क्यों बनाया गया था, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है अगर किसी को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो इस फंड से दिया जा सकता है. अभी वी आर रीडिंग ऑल इनकम रिलेटेड स्कीम्स ओनली, दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है. सो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज मेड टू प्रोवाइड medium to long term debt financing for investment in post harvest management infrastructure and commodity and community farming assets. यानी कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि दिस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विल रिक्वायर लमसम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि काफ़ी महंगा होगा, खर्चा होगा, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट.
सो दैट इज़ वाई दिस फंड वॉज क्रिएटेड, सो दैट कुछ फ़ायदे हम दे सकें. नाउ दिस फंड साइज वॉज क्रिएटेड ऑफ 1 लाख करोड़ टू बी डिसबर्स्ड ओवर 10 years, दैट इज टिल 2032 to 33. मतलब नॉट in fact 10 years, it's 11 to 12 years. But see, you have to remember the fund size. It is very important and you have to remember ये कब तक लागू है, till 2032 33. So fund size is of 1 lakh crore rupees. That is huge. So 1 lakh crore rupees का हमने fund size बनाया है to be disbursed over some 11-12 years, 2032 से लेकर 33 तक. तो इतने टाइम तक हमें इतना लाख करोड़ रुपीस डिसबर्स करने हैं. बेनिफिशियरीज कौन होंगे? अब कौन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे? जो बड़ा खर्चा है वो कौन कर सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, या स्टेट या सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, APMC, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, कॉपरेटिव्स. तो ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे वुड रियली वांट टू इन्वेस्ट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. सो दीज आर द बेनिफिशियरीज. नाउ जब ये लोन लेंगे, द लोन वुड बी टेकन फॉर अप टू 7 years और उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का ऑन लोन्स अप टू ₹2 crores फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years. सो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, फीचर्स हैं, वो आपको याद रखने हैं. लोन टेन्योर वुड बी अप टू 7 years. इंटरेस्ट सबवेंशन वुड बी 3%. बेसिक सबवेंशन इन प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव रेड इट वाज 1.5%, बट हेयर द इंटरेस्ट सबवेंशन इज 3%. दैट इज अप टू 2 crore rupees. द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट वुड बी मेड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो कि कवर करेगा लोन्स अप टू 2 crore rupees. देन लोन मोराटोरियम. मोराटोरियम मतलब एक टेम्प्रेरी रिलीफ या टेम्प्रेरी पॉज करना फ्रॉम रीपेमेंट, तो वो भी मिलेगा फ्रॉम 6 months to 24 months और 2 years. सो 6 months से 24 months या 2 years तक आपको लोन का मोरेटोरियम पीरियड भी मिलेगा. सो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है. 1 lakh crore कॉपर्स 2030 to 33 अप टू 7 years, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 2 crore. देन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट वुड बी देयर फॉर लोन्स अप टू 2 crores एंड लोन मोरेटोरियम फ्रॉम 6 months to 2 years. नाउ some expansions have been approved on 20th of August 2024. तो this we have to read. So Union Cabinet ने expand कर दिया है Agriculture Infrastructure Fund को to make it more attractive, impactful and inclusive. तो यहाँ पर हमने viable farming assets हमने बोला है कि support करना है community farming assets को. shared assets के वजह से productivity boost हो गया, sustainability आएगी. Then integrated processing projects, यानी कि अब क्या eligible होगा और क्या eligible नहीं होगा. मान लेते हैं अगर किसी को primary और secondary प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, अगर दे आर इंटीग्रेटेड, अगर इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स है तो दे आर एलिजिबल. बट अगर स्टैंड अलोन सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स है तो दे आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. बट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आर एप्लीकेबल और एलिजिबल. नाउ PM कुसुम कन्वर्जेंस, यानी कि हमने PM कुसुम को भी अलाउ किया है टू कन्वर्ज विद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ताकि बेनिफिशियरीज हो फार्मर्स, FPOs, कॉपरेटिव्स एंड पंचायत्स. Then enhanced credit guarantee coverage. Apart from this fund, coverage for FPOs extended through NAB Sanrakshan Trustee Company Private Limited, that is subsidiary of NABARD. Right. So this is it with this scheme, and now let's move on to next scheme, that is Namo Drone Didi. So Namo Drone Didi 2023 में launch हुआ था and it is also a central sector scheme, and that is why it is very important for us to know, क्योंकि एक तो ये central sector scheme है and also it is launched recently 23 and it is very much in news in PIB articles and everywhere. So you should know about Namo Drone Didi scheme. Namo Drone Didi scheme 23 में launch हुआ था up to 25-26 and maybe it may get extended later also, पर अभी इसका ड्यूरेशन है 23-24 to 25-26. द बजट आउटले वॉज 1261 crore rupees. आपको बजट आउटलेज भी याद रखने हैं. एक्चुअली आई ऑल्सो सेपरेटली टेल यू जो भी बजट में आउटलेज आए हैं, सो दैट्स नॉट अ टेंशन, बट ड्यूरेशन यू हैव टू रिमेंबर दैट इज 23-24 to 25-26. नाउ इसका टारगेट क्या है? नमो ड्रोन दीदी है क्या? हम चाहते हैं कि हम 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इक्विप करें विद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन विद ड्रोन्स, ताकि दे आर एबल टू अर्न एटलीस्ट 1 lakh rupees पर ईयर, जो हमारा लखपति दीदी का इनिशिएटिव है. सो वी वांट नमो ड्रोन दीदी टू टेक रोल इन दिस पार्ट. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्पावर करें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाय टर्निंग देम इनटू एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर्स, एंड वी आल्सो वांट टू प्रमोट प्रिसीजन फार्मिंग थ्रू ड्रोन्स. तो दोनों काम हम चाहते हैं. हम एग्रीटेक में वुमेन्स को भी लाना चाहते हैं एंड हम ड्रोन्स को भी प्रमोट करना चाहते हैं फॉर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्ट कम हो और ईल्ड्स हमारी बढ़े.
नाउ व्हाट इज़ द फाइनेंशियल डिज़ाइन? 80% सब्सिडी मिलेगी ऑन ड्रोन में एंड एक्सेसरी कॉस्ट पे अप टू 8 लाख रुपीज़, और जो बाकी का 20% है वो लोन मिलेगा वाया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एट 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन राइट। यानी कि 80% सब्सिडी मिलेगी अप टू 8 लाख रुपीज़ एंड बाकी 20% वाया इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एट 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन रेट. Now implementation, convergence of ministries, that is Department of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Rural Development and Department of Fertilizers. So convergence is happening of ministries for the implementation of this particular scheme. Now एक्चुअली आपको अब ये याद रखना है कि नमो ड्रोन दीदी के अंदर हर जो सिलेक्टेड एसएचजी है, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे एसएचजी जो नमो ड्रोन दीदी के अंदर सिलेक्ट होगी, उसमें हर एसएचजी को 2 ट्रेन पर्सन मिलेंगे. सो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो ड्रोन पायलट होगा और सेकंड जो होगा वो ड्रोन असिस्टेंट होगा. एवरी एसएचजी विल गेट 2 trained persons. This you have to get in कि आपको पता होना चाहिए. 2 trained persons. First would be pilot and second would be assistant. राइट. तो जो ड्रोन पायलट होगा उसकी 15 days की ट्रेनिंग होगी. 5 days she will learn how to fly the drone safely, aviation basics, rules सब बताया जाएगा. And in 10 days she will learn how to use the drones in agriculture, spraying fertilizers, pesticide, nutrients, and this person will actually fly the drone in farms. और जो ड्रोन असिस्टेंट होगा वो एक सपोर्ट पर्सन होगा एंड शी विल लर्न रिपेयर, मेंटेनेंस, एवरीथिंग. बैटरी कैसे चार्ज करनी है, फिक्स कैसे करना है पार्ट्स को, एवरीथिंग. एंड दिस पर्सन विल इंश्योर कि ड्रोन इज़ ऑलवेज वर्किंग एंड हेल्प द पायलट. सो ऐसे 2 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी. नाउ एक्सपेक्टेड इनकम इज़ एटलीस्ट 1 लाख पर ईयर पर एसएचजी थ्रू रेंटल सर्विसेज. हम चाहते हैं कि इतना इनकम को हम जनरेट कर पाएँ. So this is all with Namo Drone Didi scheme. And now let's move on to AgriSure Fund. Now AgriSure Fund is also launched in 2024 and that is why it is very important for us to know. AgriSure Fund यानी कि एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज. यानी ये भी एक फंड है जो पैसे दे रहा है, इनकम सपोर्ट दे रहा है. पर्पस इज प्रोवाइडिंग ब्लेंडेड कैपिटल फंडिंग फॉर एग्री एंड रूरल स्टार्टअप्स, स्पेशली दोज दैट आर टेक ड्रिवन एंड हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट बेस्ड. नाउ आपको इसमें ये जो फैक्ट्स हैं ये याद रखने हैं. द टोटल कॉर्पस वुड बी 750 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 250 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड एंड 250 करोड़ आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. सो 250 यू हैव टू रिमेंबर दिस. 750 करोड़ का कॉर्पस है पूरा. नाउ फंड मैनेज कौन करेगा? तो फंड वुड बी मैनेज बाय नेब वेंचर्स, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड. तो आपको याद रखना है कि नेब वेंचर्स जो है वो फंड को मैनेज करने वाला है. नाउ दिस फंड विल हैव 2 components. फर्स्ट इज एग्रीश्योर फंड ऑफ फंड्स 450 करोड़ और बाकी का जो 300 करोड़ है वो डायरेक्ट स्कीम ऑफ 300 करोड़. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज देयर इन दिस. सो पहला जो फंड होगा एग्रीश्योर, दैट इज़ फंड ऑफ फंड जिसका कॉर्पस है 450 करोड़. तो एग्रीश्योर फंड ऑफ फंड्स मतलब होता है कि वो डायरेक्टली मनी नहीं देगा स्टार्टअप्स को. वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर एग्रीश्योर फंड. सो एग्रीश्योर का मतलब ही है एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स. सो दिस फंड विल नॉट गिव डायरेक्टली मनी टू स्टार्टअप्स, इंस्टेड इट विल इन्वेस्ट इन अदर वेंचर कैपिटल फंड्स. और फिर वो जो वेंचर कैपिटल फंड्स है दे विल देन गिव मनी टू स्टार्टअप्स. सो इट्स अ इनडायरेक्ट थिंग कि वो जो एग्रीश्योर फंड है वो वेंचर कैपिटल फंड्स को देगा एंड देन दोज वेंचर कैपिटल फंड्स विल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. सो ईच वेंचर कैपिटल फंड जो होगा, जो AIFs है, दे विल गेट अप टू 5% ऑफ इट्स टोटल साइज और 25 करोड़ विच एवर इज स्मॉलर. सपोज करते हैं कि एक फंड है कॉल्ड एज एग्रीटेक VC फंड, दैट इज वेंचर कैपिटल फंड, जिसका टोटल साइज है 400 करोड़. तो 400 करोड़ का 5% होता है 20 करोड़. अब 20 करोड़ और 25 करोड़ में से जो छोटा अमाउंट है दैट इज़ 20 करोड़, यानी इन्हें 20 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा एंड दिस मनी कैन बी यूज टू फंड अदर स्टार्टअप्स बाय दिस पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल फंड. सो 5% या फिर 25 करोड़ जो भी कम है, दिस AIF विल गेट दैट. उसके बाद सेकेंड फंड है एग्रीश्योर डायरेक्ट स्कीम, दैट इज ऑफ 300 करोड़. यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है एग्रीश्योर फंड इन स्टार्टअप, नो मिडिल मैन इज देयर. हर जो स्टार्टअप है वो DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होना चाहिए, एग्रीकल्चर या रूरल बेस्ड, एंड ईच स्टार्टअप कैन गेट अप टू 25 करोड़ इन इक्विटी सपोर्ट. नाउ प्रीवियसली इन फंड ऑफ फंड इट वॉज कि 5% और 25 करोड़ जो भी कम है, हेयर इट इज़ अप टू 25 करोड़. सो आपको ये याद रखना है, अप टू 25 करोड़.
Now the last scheme for today's class is credit guarantee scheme for ENWR pledge financing. Now what is ENWR? ENWR मतलब होता है ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स. Now I'll explain you basic ताकि आपको समझ आ जाए कि what it is, so that you will not get confused. And it is very recent scheme, February 2025, very important for us to study. Credit guarantee scheme for ENWR pledge financing. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है एंड इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर हिज क्रॉप. अब वो क्रॉप को सस्ते में बेचने की जगह वो वेयर हाउस पे जाएगा एंड वेयर हाउस पे अपना सामान जमा करा देगा. वेयर हाउस पे सामान जमा करा देगा, उसको पैसे वैसे देने के बाद उसको एक रिसीट मिलेगी. नाउ दिस रिसीट इज़ वेयर हाउस रिसीट. नाउ दिस रिसीट के बदले वो बैंक से लोन ले सकता है. दिस इज़ कॉल्ड एज ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट. तो क्योंकि बैंक्स जो है वो लोन देते हैं अगेंस्ट दिस रिसीट इशूड बाय, कौन इशू करता है, इसे इशू करता है वो वेयर हाउस जो WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस है, जहाँ पर फार्मर ने अपना जो क्रॉप का प्रोड्यूस है वो रखवा है. तो वो वेयर हाउस वो रिसीट देगा और इस रिसीट के अगेंस्ट बैंक्स जो है वो लोन्स दे सकते हैं. सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होकर दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम हैज़ बीन मेड फॉर ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट प्लेज फाइनेंसिंग. नाउ वाई इज़ द नीड? क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो यूजुअली सेल कर देते हैं हार्वेस्ट के बाद, और उनको अगर प्राइजेस कम मिलती हैं उसके बाद भी वो सेल कर देते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ प्लेस टू कीप देयर प्रोड्यूस, जहाँ पे वो अपनी प्रोड्यूस को आराम से सेफली रख सकें. ये जो स्कीम है वो उनको पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स लेने में मदद करेगी, क्योंकि वो अपना प्रोड्यूस रखेंगे, वो रिसीट लेंगे और वो रिसीट के खिलाफ बैंक में लोन ले सकते हैं और वो लोन से वो वेयर हाउस वाले को पैसे दे सकते हैं. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस. नाउ द कॉर्पस इज़ 1000 करोड़ रुपीज़. दिस यू हैव टू रिमेंबर. Now there was also another scheme that was launched in 2023 with the name Credit Guarantee Scheme for Warehousing Sector. Because I have included this here क्योंकि आपको confusion ना हो इन दोनों schemes में. This scheme is Credit Guarantee Scheme for ENWR Pledge Financing और ये scheme थी for Warehousing Sector. इसका कॉर्पस था 500 करोड़ रुपीज़. Now let me just tell you this also कि ये किस चीज़ के लिए थी. दिस स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड गारंटी कवर टू बैंक्स या NBFCs जो लेंड कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. जैसे कि अगर कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है, कोई साइलोज, कोई पैक हाउसेज बनाना चाहता है, या एनीवन इज़ वांटिंग टू बिल्ड वेयर हाउसेज. सो दिस स्कीम वॉज फोकस्ड ऑन देम कि बैंक उन्हें लोन दे. तो एक गारंटी कवर बैंक को प्रोवाइड करने के लिए दिस स्कीम वॉज लॉन्च, जिसका कॉर्पस था 500 करोड़ रुपीज़. बट वी आर नॉट स्टडिंग दिस स्कीम. हमारे लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है अभी पढ़ना. वी आर स्टडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR प्लेज फाइनेंसिंग, जिसका कॉर्पस है 1000 करोड़ रुपीज़. नाउ इसमें आपको जो याद रखना है इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि कितना लोन मिलेगा, व्हाट इज़ अ मैक्सिमम लोन अमाउंट कि जो गारंटी सपोर्ट की तरह स्कीम में मिल सकता है. मान लीजिए आपने अपने क्रॉप को प्लेज करा है कि ये हमने स्टोर करा है WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस में, तो आपको उसके बदले कितना लोन मिल सकता है. नाउ अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हैं, सो यू कैन गेट लोन अप टू 75 लाख रुपीज़. एंड इफ़ यू आर टेकिंग लोन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ लाइक इफ़ यू आर अ ट्रेडर और MSME, देन यू कैन गेट लोन अप टू 2 करोड़ रुपीज़. सो दीज बोथ पार्ट्स आई बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि 75 लाख रुपीज़ का लोन मिलेगा फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड 2 करोड़ रुपीज़ का लोन मिलेगा फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस. नाउ हु कैन गिव दिस लोन्स? सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये कोई भी लोन दे सकता है. और हु आर एलिजिबल टू बोरो दीज लोन्स? कोई भी लोन ले सकता है बाय प्लेजिंग ENWR, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन, SC, ST, PWD फार्मर्स, अदर फार्मर्स, MSME, ट्रेडर्स, FPOs, फार्मर कोऑपरेटिव्स. तो दोनों फार्मर्स एंड एग्री लिंक्ड बिजनेसेस आर एलिजिबल टू टेक द लोन्स. नाउ देर इज़ ऑल्सो अ रिस्क कवर्ड, क्योंकि ये रिस्क है, दे आर प्लेजिंग सिक्योरिटीज़, फिर बैंक्स में लोन ले रहे हैं, तो उनको रिस्क की तौर पे गारंटी फ़ी देना पड़ेगा जो बोरोअर है टू बैंक्स. व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज़ बीइंग कवर्ड? 2 टाइप के रिस्क कवर्ड हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ क्रेडिट रिस्क एंड सेकेंड इज़ वेयर हाउस मैन रिस्क. क्रेडिट रिस्क मतलब व्हाट इफ़ बोरोअर ने लोन रीपे नहीं किया. सेकेंड इज़ वेयर हाउस मैन रिस्क, यानी कि अगर क्रॉप लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, वेयर हाउस ऑपरेटर फेल हो गया, तो दैट इज़ अ वेयर हाउस मैन रिस्क. सो फर्स्ट इज क्रेडिट रिस्क. अगर मैंने मान लीजिए लोन लिया है एंड अगर मैंने रीपे नहीं किया तो दैट्स अ क्रेडिट रिस्क जो बैंक्स ले रहे हैं. एंड सेकेंडली अगर वेयर हाउस जिसमें मैंने रखा है, अगर वो वेयर हाउस में क्रॉप लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, सो दैट इज़ अ वेयर हाउस मैन रिस्क दैट इज़ बीइंग कवर्ड. अब
अगर इफ़ आई एम द बोरोअर देन आई विल पे सम गारंटी फ़ी टू बैंक टू गेट दिस फंड. सो सबसे पहले अगर फार्मर है तो वो गारंटी फ़ी देता है 0.4% पर ईयर, विच इज़ वेरी लो. एंड अगर कोई नॉन फार्मर है लाइक ट्रेडर्स और MSME, तो उनको 1% पर ईयर की गारंटी फ़ी देनी पड़ती है. सो आपको गारंटी फ़ीस भी याद रखनी है, दैट इज़ 0.4% एंड 1%. Now, what is a guarantee coverage? How much loan loss is covered by government? So, अगर अभी हमने पढ़ा कि 75 लाख लोन कवर्ड है अप टू फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड 2 करोड़ का लोन कवर्ड है फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस. बट अगर कोई छोटा लोन है दैट इज़ अप टू 3 लाख रुपीज़, सो 85% का गारंटी कवरेज इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट. अगर कोई बड़ा लोन है अप टू 3 लाख टू 75 लाख रुपीज़, देन 80% गारंटी कवरेज इज़ गिवन. एंड फॉर अदर बोरोअर्स 75% गारंटी कवरेज इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस स्कीम. राइट नाउ, इफ़ बोरोअर फेल्स टू रीपे द गारंटी फंड पेज द बैंक इन 2 इंस्टॉलमेंट. मान लेते हैं कि अगर बोरोअर फेल हो गया रीपे करने के लिए, सो दिस वाज अ गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट कि अगर लोन का लॉस हुआ तो इतनी गारंटी जो है वो कवर्ड होगी. सो इफ़ अ लोन वॉज टेकन ऑफ लेट्स से 50 लाख रुपीज़, राइट, अगर 50 लाख रुपीज़ का लोन लिया गया था दैट इज़ लेस देन 75 लाख रुपीज़. सो 50 लाख रुपीज़ की गारंटी कितनी है? 80%, क्योंकि 50 लाख जो है वो 3 लाख से 75 लाख के बीच में आता है. सो 50 लाख की गारंटी है 80 लाख रुपीज़. सो व्हाट इज़ द प्रोविज़न? जो भी गारंटी अमाउंट है, जैसे कि 50 लाख रुपीज़ का 80% गारंटी लिया था, यानी कि 40 लाख रुपीज़ की गारंटी ली थी. सो इस 40 लाख का जो 75% है जो कि होगा 30 लाख रुपीज़, 40 लाख का 75% होगा 30 लाख रुपीज़. सो देयर इज़ अ कॉम्पोनेंट कि 30 लाख रुपीज़ तो जो है वो बैंक्स को दे दिए जाएंगे और जो रिमेनिंग 10 लाख रुपए बच गए हैं गारंटी के, वो बाद में दिए जाएंगे अगर रीपे करने में फेल हो जाते हैं. तो दिस इज़ अ गारंटी टेकन बाय द बैंक. जो 1000 करोड़ कॉपर्स का फंड बनाया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे ही तो वो यूज़ होगा. राइट. केस बी, अगर लोन अमाउंट जो है वो 75 लाख से 2 करोड़ के बीच का है, मतलब कि वो नॉन एग्रीकल्चर लोन है, देन 60% जो गारंटीड अमाउंट है, यानी कि अगर 1 करोड़ का लोन लिया है तो 1 करोड़ के लोन पर जो गारंटी है दैट इज़ 75%, क्योंकि सिर्फ 75 लाख तक की गारंटी 80% है. तो एक्चुअली 75% गारंटी है, तो 1 करोड़ की 75% गारंटी हो गई 75 लाख रुपीज़. अब इस 75 लाख रुपीज़ का जो 60% है दैट इज़ 45 लाख रुपीज़, वो बैंक को दे दिया जाएगा और जो रिमेनिंग 30 लाख रुपीज़ है वो लेटर दिया जाएगा. सो यहाँ पर 60% एंड 40% का रेशियो है एंड यहाँ पर 75% एंड 25% का रेशियो है. I hope you are understanding this well. Let me just make you again understand because I don't want you to get confused in any component. So from the starting, let us just discuss once again. If you are not being able to understand, please tell me in the comment section also. I'll make you understand really well. Now, credit guarantee scheme for ENWR, that is negotiable warehousing receipt. अगर फार्मर है, उसने अपना कोई क्रॉप लेकर आया है, मान लेते हैं उसने टोमेटो की बहुत ज़्यादा खेती करी है एंड ही हैव टोमेटो विथ हिम. अभी टोमेटो का प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गया है. अगर उसने अभी बेच दिया टोमेटो तो उसको लॉस हो जाएगा, बट देन ही वुड वांट कि उसके पास एक फैसिलिटी हो, एक वेयर हाउस हो जहाँ पे वो स्टोर कर सके. सो देन ही विल गो टू दिस वेयर हाउस दैट इज़ रजिस्टर्ड विद WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो वो वहाँ जाएगा वेयर हाउस में एंड ही विल कीप हिज क्रॉप्स. वहाँ पर से उसको एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट लेके बैंक्स के पास जाएगा, बैंक्स उसको लोन दे देगी, वो लोन से वो वेयर हाउसेज में भी पैसे दे सकते हैं. सो दिस इज़ इट. नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि वो 75 लाख रुपीज़ का लोन ले सकता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, 2 करोड़ का लोन ले सकता है फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस. नाउ अगर उसको गारंटी फ़ी भी देनी पड़ेगी, सो 0.4% गारंटी फ़ी टू फार्मर एंड 1% गारंटी फ़ी टू अदर. गवर्नमेंट ने भी गारंटी कवरेज दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट की गारंटी कवरेज है 85%, 80% एंड 75%. 85% 3 लाख के लोन के लिए, 80% 3 से 75 लाख लोन के लिए और 75% अदर लोन्स के लिए. नाउ अगर ये फेल हो जाते हैं तो जितना अमाउंट है जो गारंटी कवर में आता है, अगर वो 75 लाख से कम है तो देन 75% would be paid immediately, 25% later. एंड अगर वो 75 लाख रुपीज़ से 2 करोड़ के बीच में है, देन 60% अभी दिया जाएगा एंड 40% later. So this is all with the scheme and I hope now you understood it well.
प्लीज़ सॉल्व दिस MCQ एंड देन यू वुड रियली नो कि आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज scheme provides 1000 crore guarantee fund to support post harvest pledge financing against electronic negotiable warehousing receipts. Second is both scheduled commercial banks and cooperative banks are eligible lending institutions under scheme. Third is the maximum loan eligible for guarantee coverage is 2 crore rupees. Fourth is guarantee coverage is uniform at 100% for all farmers. So please take a pause, please solve this MCQ. Now let's see the answer. The answer is 1, 2 and 3. 4 is wrong definitely. Guarantee coverage we studied. It is 85%, 80% and 75%. Yani coverage is between 75 to 85% and not 100%. One more MCQ which is asking you which of the following combinations are correctly matched. So firstly, loans up to 3 lakh rupees 85% guarantee coverage, loans between 3 to 75 lakh rupees 80% guarantee coverage, loans between 3 to 75 lakh rupees 75% guarantee coverage, या फिर loans above 75 lakhs up to 2 crore rupees not eligible. So I am sure you must have thought the right answer, and the right answer is, so the answer is A, 1, 2 and 3, because loan above 75 lakh to 2 crore are also eligible for 75% of guarantee coverage. So that's it for the day. I hope you liked the video. I hope you enjoyed watching the session and you learned something new. In our second part, we will move on to budget related schemes, and we will see all these schemes that is introduced or talked about in budget, that is PM Dhan Dhanya Yojana, Rural Prosperity and Resilience Program, Atmanirbharta Impulses, Makhana Board, Mission on High Yielding Seeds, Mission for Cotton Productivity, DAP Fertilizer Subsidy Extension, MSP hike for copra, National Mission on Natural Farming and New Urea Plant in Assam Namrup. तो ये सारी schemes and जो सारे provisions हैं budget के, that we are going to study in our second class. And stay tuned for second class, and I hope you liked the session. Please like, share and comment. Please tell me what you liked and what you didn't like, and also tell me your views. Are you liking the sessions? Are you enjoying, and are you learning something new, and are you being able to retain what I am teaching to you? And you can also join Telegram channel for more updates, for more videos, PDFs, etc. And in the comment section or in the Telegram discussion group, you may ask me any doubts. And thank you for watching.